अगर इसकी नौकरी नहीं लगती तो शायद 2 सुसाइड्स और होते थे, और एक टीचर बहुत कुछ बदल रहा होता है। और आर्ट खुद एक साइंस का फॉर्म भी लेता जा रहा है। Correct. So you're talking about intersectionality of art and science and different fields coming together in today's time. Correct. This is what Kalyug is. जो लोग आर्टिस्टिक होते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी अलग हो जाती है। आर्ट इज डाइंग, ये स्टेटमेंट गलत है। Hitesh sir, Hi. we are in Mumbai and the year is 2024. Can I request you to close your eyes for me? Absolutely. Please go back to your childhood, My childhood, okay? the year of your choice. Find the memory when curiosity took over you. You can open your eyes. Right. So, coming from a humble background, I was this one at one of these colleges where there was this huge event going on, and did not get the opportunity to be a part of a very big school or a very big college. You know, and I was delivering something to the school or to the college, and it was during that event I saw a huge gala, a huge event going on, and wondered if I could ever be a part of something this huge. And cut to a decade later, I was the chief guest of the same event. So yes, that was the moment I believe, a lot of curiosity came into me, and I was wondering if this can be achieved. And I don't say that I worked towards it. I kind of manifested it, yes, and it happened to me. Uncanny, because that's a thought came to my mind. Curiosity led to manifestation. Yes. Do you see a pattern in that? Absolutely, there is. Wishful thinking is an informed decision, I believe. तो जब आप डिज़ायर करते हो और जब आप ज़िद करते हो, तो मैनिफेस्टेशन की स्टेज डिज़ायर से ज़िद के दौरान की जर्नी है ना? तो लोग ऐसा कहते हैं कि ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि 3 कनेक्टेड चीज़ें हैं। पहले आप डिज़ायर करते हो, फिर उसको मैनिफेस्ट करते हो, वो ज़िद में बदलता है, एंड देन आप रिजल्ट्स अचीव करते हो। सो येस, ऑफ कोर्स दे आर कनेक्टेड। For an educator to say this, it's such a powerful statement and a statement full of hope, I would say. Absolutely. Educator, it was an informed decision, right? Because I loved interacting with people, I loved teaching people, and there was an adrenal rush that I got when I went into the classroom. So these are 2 different things, by the way. I being a teacher, and I manifesting to be at a particular stage. I believe my passion for education got me there. Right? So these paths weren't traveled differently, or there was no connection directly as well. It was a situation where I thought of doing good to the students, and in return वो जो मैनिफेस्ट किया था वो एक रियलिटी बदला। When did you first realize that your life was about something bigger than yourself, about helping others, or help, guide, mentor? What is the right word? So I used to work as a helper, as an office boy as well. राइट, तो बहुत कम पैसे मिलते थे 8-10 घंटे पढ़ाने के, और पहली बार एक बच्चे को जब पढ़ाने का मौका मिला तो उसने 1 घंटे के 1000 रुपये दिए थे 1 महीने के, और मैं 950 रुपये में उससे पहले पूरा महीना काम करता था। राइट, सो जब ये हुआ तो लगा कि बॉस ये तो बहुत सही है। तो कुछ समय पढ़ाने लगा तो पढ़ाने में मज़ा आने लगा, तो लोगों ने अपॉर्चुनिटी भी देना शुरू कर दी। अपॉर्चुनिटी दी तो फिर बड़े बनने का मौका मिला। फिर उसके बाद MBA किया। MBA करने के बाद फिर लगा कि नहीं, ये नहीं करना है, मुझे पढ़ाना ही है। पढ़ाने से अलग प्यार हो गया। तो यहाँ तक तो कोई पब्लिक को हेल्प करना अब तक आया नहीं था। वो सब प्यार मोहब्बत जो प्रोफेशन से था वो चल रहा था। अब तक ना किसी का कोई भला किया, तो कोई टर्निंग पॉइंट आया नहीं था। There was this particular family that came to me from Marathwada belt, right? This student of mine, I'm sorry, I don't recall his name, but yes,
a very dear student, वो क्लास में जब मेरे ऑफिस में आए, मेरे केबिन में आए, पेरेंट्स और बच्चा दोनों, राइट? तो वो फादर टिपिकल वो टोपी लगाकर और कुर्ता पैजामा, और जो आंटी आए थे वो सब घूंघट में, और ये स्टूडेंट भी साथ में ही आया था। तो वो आए और मुझे पता था हमारा स्टूडेंट है, तो केबिन में आए और मैंने बोला प्लीज़ बैठिए। तो पहले तो वो आए और वो मेरे पैर पड़ने लगे, तो ना 2 सेकंड के लिए मैं ऐसा डर गया, तो मैं थोड़ा पीछे हुआ। मैं बोला प्लीज़, आप बहुत बड़े हैं, आप प्लीज़ बैठिए पहले। तो बैठे, तो उन्होंने बोला ये हमारा बेटा है। मैं बोला जी। बोला आपके पास पढ़ता है? मैं बोला जी। तो उन्होंने कहा कि इसकी नौकरी लग गई। मैं बोला मुझे पता है, इसके 8 लाख का पैकेज लगा है। मैं बोला जी सर। तो बोले सर हमारे जो बड़े भैया हैं, उन्होंने पिछले साल हमारे यहाँ जो सूखा कई सालों से गांव में चल रहा है, उसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। मतलब जी सर। तो बोले इसकी नौकरी लग गई है 8 लाख की, और हम लोग ने शायद पिछले 4-5 सालों में एक साथ भी 8 लाख नहीं देखे हैं, एंड अगर इसकी नौकरी नहीं लगती तो शायद 2 सुसाइड्स और होते थे। और सो मतलब ये जब वो कह रहे थे, अभी तो मैं बड़ी आसानी से कह जा रहा हूँ, स्टिल हैव हाँ, उस लम्हे उनके आंखों से भी आंसू निकल रहे थे, मेरे आंखों से। सो आई बिलीव इट वाज इन दिस मोमेंट दैट आई रियलाइज दैट एक टीचर बहुत कुछ बदल रहा होता है। और इस लम्हे के बाद जब मैं थोड़ा कॉन्शियसली अच्छा करने लगा, तो शायद ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस सामने आने लगे जहाँ अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग स्टूडेंट्स थैंकफुल रहे। सो जस्ट कोविड के पहले वाला जो मेरा बर्थडे था, आई बिलीव मेरे स्टूडेंट्स ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सरप्राइज़ प्लान किया। शायद 60 या 70 कंट्रीज से मुझे हैप्पी बर्थडे विशेस आए। सो वो बहुत ही ओवरवेलमिंग एक फीलिंग रही मेरे लिए। From being an office boy and a teacher who earned only 800-900 rupees, Right. to today having, I don't know, 5, 6, 7 companies under your name. Right. You have HR mentors, you help people get coaching for MBA and IIT JEE, you have career mentors, you place people abroad, you have ventured into skincare. Yes. And before that, you have worked in FMCG, banking, and the list just goes on. Right. What do you reflect on when you see this incredible journey? What has enabled you, helped you reach where you are today? I believe my ability to, present my product really well. Right. So I'll just correct you here that HR Mentor is not into IIT. It is into MBA test prep. Career Mentor is actually into helping people identify their calling. We help people get into unconventional career options. Overseas mentors, of course, study abroad. Then we have this new brand called, Sash Beauty, which is into skincare. I'm also associated with a brand called Acat Space. I'm the CEO of that company, which is a Niti Aayog recognized and Atal Mission recognized brand, where we do career counseling for free, and we have, the privilege of counseling 7 lakh plus students for free. Incredible. We don't charge anything for that. So I believe in all these products. In fact, I had my own food brand as well. So all these products that I've been into, I believe one thing that I've been able to do is present my product the way I want to. Right. So I have had the image of my brand, and I have been able to convey the same to the public. With HR Mentors, I'll tell you something. HR Mentors has never in its span of 11 years had a single newspaper ad, not a hoarding. Right. So despite that, we have been able to say no to students, and we claim that we are Central India's favorite institute, right? Where we have people who are, a 334 on 340 in GRE, a 780 on 800 in GMAT. As trainers, we have, people who are several times 99 plus percentile. We have someone who is as good as 100 percentile, and we have got the best people. Right, but these people have been able to deliver because they have the process very clear in their mind what they are supposed to do. Even with Sash Beauty, we are very clear as to what is to be told, what is the image that we want the product to have. So during our MBA sessions, we were always told, that a Mercedes or a Rolex or a Rado does not advertise in cricket.
right? Though cricket is again my favorite game, right? But they don't advertise there because they know that the sport is a mass sport, and they don't want to be a mass brand, and hence they choose a lawn tennis over a cricket. So they have very clear communication in their mind. So I believe being very clear as to what is to be done and when is to be done is something that has helped me, or destiny, or blessings of elders. Your humility is, I think, will keep coming out in this conversation. I will just pick one thread from this, career mentors. And you said you help people find unconventional careers. Right. How do you define unconventional careers, and how do you help them find their true match or their voice? So, according to me, in our opinion, unconventional is something that is not regularly sought after. A career that is going to be conventional soon, again, is something that is unconventional, because people have started chasing unconventional, right? So, unconventional, in my opinion, in my idea, is something that is not as popular as the other very popular career options, right? I do not say that people should not choose conventional careers. We help them discover the advantages of unconventional careers, even if they have, the slightest of the ideas as to, there exists something like this, and I may be able to pursue something like this. Any example comes to your mind? So there are a lot of. So recently we had a student, who wanted to do hotel management. So of course, ज़्यादातर ये जो situations होती है, इसमें हमारे पास parents भी आते हैं, and the family was affluent. तो पापा ने कहा कि मेरा बेटा वेटर नहीं बनेगा, है ना? और फिर मुझे, so it's not about counseling the student. These days, thanks to the fast growing internet speed, students को सब कुछ पता है, right? और parents को वो अपनी दुनिया में वो हैं, और उसकी वजह से वो एक गैप आ चुका है, right? कई बार पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे की जिद है जिसकी वजह से वो करना चाहता है, भले ही वो शायद उसका पैशन हो, राइट? सो अब जैसे होटल मैनेजमेंट, तो मुझे एक्चुअली पेरेंट को समझाना पड़ा कि इसके ना कई वर्टिकल्स होते हैं सर. किचन अलग वर्टिकल होता है, रिसेप्शन अलग होता है, हाउसकीपिंग अलग होता है. सो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट से लेकर हाइजीन मैनेजमेंट तक अलग चीज़ें होती है. सिर्फ वेटर नहीं होता है, और वेटर भी एक अलग चीज़ होती है, और वेटर कोई ख़राब चीज़ नहीं होती है, राइट? सो ये सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन करना इज़ द टास्क, राइट? कोई पेरेंट ये नहीं सोच रहा होता है कि मेरा बेटा एक्चुअली किसी क्रिकेट टीम का हिस्सा बन सकता है, मैनेजिंग देयर किचन, राइट, एंड ट्रैवलिंग द वर्ल्ड ओवर. किसी पेरेंट ने सोचा कि मेरा बेटा किसी क्रूज शिप पे हो सकता है. एंड जब मैं उनको बताता हूँ, मैं एक्चुअली उनको ये लिस्ट खोल के दिखाता हूँ कि इतने मिशेलिन स्टार शेफ्स आपके यहाँ बैठे हैं, राइट? ऑफ कोर्स सबको एक ही नाम पता है, गॉर्डन रैमजी, और फिर हमको बाकी सारे नाम दिखाने पड़ते हैं. बट येस, चलो बहुत अच्छी बात है कि उनको एक नाम तो पता है. तो कहते हैं कि नहीं सर एक ही नाम है, तो फिर उनको दिखाना पड़ता है कि नहीं, इतने दुनिया के इतने अमीर लोगों में इतने शेफ शामिल है. तो इतनी छोटी सी चीज़ है होटल मैनेजमेंट, बच्चे के मन में आया. क्यों आया? क्योंकि उसको खाना बनाना बचपन से पसंद है. वो अपनी मम्मी को असिस्ट कर रहा था, उसको बहुत मज़ा आता है लोगों को खाना बना के खिलाने में, राइट? तो उसको होटल मैनेजमेंट करना भी है, नहीं पहले ये डिस्कवर करना होटल मैनेजमेंट के कौन से विंग में उसको इंटरेस्ट है, डिस्कवर करना, और ये समझा पाना कि कलनरी आर्ट्स के इंडिपेंडेंट कॉलेजेस हैं. पेरेंट्स सोचते हैं कि सर इसकी नौकरी क्या लगेगी, सो उनको समझाना पड़ता है कि IHM औरंगाबाद और ताज का डायरेक्ट एसोसिएशन, ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं जिनके डायरेक्ट एसोसिएशन है इन होटल चेन्स के साथ, और ये कैंडिडेट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं. मेरे ऐसे बच्चे हैं जो 20-21 साल के अंदर रिट्स कार्ल्टन में बैठे हैं, दे आर हैविंग अ टाइम ऑफ देयर लाइफ, राइट? बट देन एट द सेम टाइम मेरे पास एक कैंडिडेट आती है, बोलती है मुझे होटल मैनेजमेंट करना है. बोले क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है. ये पॉज लेने की बात है, और यहाँ पे उसको एनकरेज करने की जरूरत नहीं है. अब यहाँ पर उस स्टूडेंट को कम्युनिकेट कर पाना कि X चीज़ नहीं करना, इसकी वजह से Y करना, ये कोई वाइज चीज़ नहीं है. मुझे लगता है यहाँ पर उस कला को, एक टीचर की गाइड करने की कला को बाहर आना बहुत ज़रूरी है. एम्पैथी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है. तो ऐसी सिचुएशंस भी आती है जहाँ स्टूडेंट बोलते हैं होटल मैनेजमेंट करना है क्योंकि मुझे ये नहीं करना है. फिर उनको बताता हूँ कि आप रोज़ मेकअप करोगे. सर मेरे को पसंद ही नहीं है मेकअप. मैं बोला वो कॉलेज के अंदर हर रोज़ मेकअप करके जाना है. बोले अगर मेकअप नहीं करेंगे तो नहीं जाना है. फिर मतलब आप करियर वो चूज़ कर रहे हो. बोले मैं सर मैं तो एब्सोल्यूट इंट्रोवर्ट हूँ. मैं बोला फिर आप कौन से विंग में जाना चाहते हो होटल मैनेजमेंट के? बोले वो नहीं पता सर.
सो यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. मैं तो ये होटल मैनेजर बता रहा हूँ, ऐसे 1000 करियर्स है जिसके लिए बच्चे हमारे पास आ रहे होते हैं हर रोज़ अलग अलग चीज़ें लेकर. और वो हम थोड़े से रिलीजियस भी हैं, तो मेरी मम्मी है ना हिंदू स्क्रिप्चर्स में से श्रीमद् भागवत का एक नरेशन बताया करती थी हमें, तो बहुत मेरे साथ रह गया. तो जब भगवान कृष्ण सारे पांडवों को कलयुग का एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं और वो 5 तीर छोड़ते हैं अलग अलग डायरेक्शन में और 5 को बोलते हैं कि लेकर आओ, तो उनमें से वन ऑफ दीज इंस्टेंसेस वेयर नकुल और सहदेव आई बिलीव गोज टू टेक दैट एरो, और वहाँ पर एक गाय अपने बछड़े के साथ बैठी होती है, न्यू बॉर्न बछड़ा होता है और गाय उसको लिक कर रही होती है और क्लीन कर रही होती है. तो देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग अबाउट इट. बट जब वो उस तीर को लेकर वापस आ रहा होता है और देखता है कि अभी भी वो बछड़ा क्लीन हो चुका है, गाय उसको और लिक कर रही है प्यार से, इन द प्रोसेस वो गाय अपने बछड़े की स्किन को छील दे रही है एंड द काफ स्टार्ट्स ब्लीडिंग. दिस इज व्हाट कलयुग इज, वेयर पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार देने के चक्कर में नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे. दिस इज व्हाट आई हैव विटनेस्ड. Where does the conversation around art come in all this? ये जितने भी unconventional careers आप लोगों को help कर रहे हैं पाने में. Right. Are you seeing a pattern in the desire to follow their artistic pursuit? So आज आप careers देखें तो 2 कैटेगरी में डिवाइड हो चुके हैं. Right. Sorry, 3. Right. Absolute technical sciences. Absolute commerce and absolute arts. Right. यहाँ पर चीज़ें, जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि कई चीज़ें जो कॉमर्स से उठ के आर्ट्स में जा रही है. Right. फॉर एग्जाम्पल बिजनेस मैनेजमेंट, जो एक समय तक कॉमर्स का ट्रेड हुआ करता था, अब एक इंडिपेंडेंट स्ट्रीम बन चुकी है. सो आई हैव डॉक्टर्स, आई हैव चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई हैव स्टूडेंट्स ऑफ फिशरीज. राइट. आई हैव डेंटिस्ट तो हमेशा से रहे हैं मेरे पास. राइट. कॉमर्स वाले भी रहे हैं, इंजीनियर्स भी रहे हैं, मगर ऐसी स्ट्रीम्स जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, वहाँ से स्टूडेंट्स MBA कर रहे हैं. Right. एंड वो इसलिए क्योंकि MBA टीचेस यू हाउ टू रन अ शो. Right. बी अ शोमैन. ये कंसेप्ट ऑफ शोमैन खुद एक आर्ट है. राइट. तो MBA यही सिखा रहा है. आज मैं ब्रांडिंग में जा रहा हूँ, आज मैं एडवर्टाइजिंग में जा रहा हूँ, इसमें आर्ट का एंगल है, और आर्ट खुद एक साइंस का फॉर्म भी लेता जा रहा है. Correct. So you're talking about intersectionality of art and science and different fields coming together in today's time. Correct. And again they all switching their roles. राइट. तो जैसे आपके मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाता हूँ, यहाँ पे आर्ट्स कहाँ आ रहा है. सो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जो अभी मास मीडिया, बैचलर्स इन मास मीडिया, बहुत पॉपुलर कोर्स ले रहे हैं. राइट. उनको जब काउंसिल करना होता है तो पूछना पड़ता है कि भैया आपने पास्ट में क्या आर्टिस्टिक किया है जो आप मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन जैसी चीज़ में जाना चाहते हो. आपने ऐसे लिखा है कभी, या स्टेज पे प्रेजेंटेशन दी है, ड्राइंग की है, पेंटिंग की है, या लोगों के सामने खड़े होकर गाना गाया है. ये एक हो गया. इसके बाद बैचलर्स इन डिज़ाइन एक बहुत बड़ा करियर बन के सामने आ रहा है, जो अब से 1 डेकेड पहले ऑलमोस्ट इन एग्जिस्टेंट था इंडिया में. Right. बट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इट हैज़ ग्रोन मैजिकली. बैचलर्स इन आर्ट्स क्यों कर रहा है? इंग्लिश कोई नॉवेल पढ़ी है? नहीं. हिंदी कुछ पढ़ी है? नहीं पढ़ी. कभी कुछ भी पढ़ा है? नहीं पढ़ा. तो फिर क्यों? राइटिंग इज एन आर्ट, रीडिंग इज एन आर्ट. यू योरसेल्फ आर अ फैबुलस पोएट. Thank you. राइट. एंड और आप जब पीछे लुक बैक करेंगे तो आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा. Right. मुझे लगता है कि हर करियर स्विमिंग की तरह है. जब तक पानी में उतरोगे नहीं, सीखोगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कूद गए और तैर. ये बोलने की बात है, डूब जाओगे. This is so relevant for this platform because Voice of Artist का thought ये है कि हर इंसान अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगाए. Whether you are a full-time artist, you have found the means to survive and thrive through it, or you are doing something in your life and you want to pursue your passion, which is art. राइट. But इसमें what you said, please don't fool yourself. करेक्ट. If you want to become a full-time artist, is it out of elimination? Then please don't do it. If you have a passion but you have not found a path how to navigate and make it real, please don't go ahead, is what you're saying. Absolutely. So how to become an artist? How to become a full-time artist? Anything that you want to do, you start with it. Unless you start, तुम्हें पहले गलतियां करनी ही पड़ेगी. जब मैंने ये सेशन लिए हैं कई बार, तो आई डू नॉट लाइक टू कॉल माई सेल्फ ट्रेनर.
आई डू नॉट लाइक टू कॉल माई सेल्फ एन एंटरटेनर. मुझे एक वो ब्लेंड पसंद है, आई कॉल माई सेल्फ एन एंटरटेनर. एंटरटेनर. राइट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन शुड बी फन. राइट, और उसकी शुरुआत ही होती है लोगों से उनकी गलतियां निकलवा कर. राइट, तो मुझे लगता है कि हम एज आर्टिस्ट सबसे पहले सबसे छोटा प्लेटफॉर्म ही सही सीख करें गलती करने के लिए. सही क्या करना है ये करने के लिए गलत बहुत सारा करना ज़रूरी है. राइट, यहाँ पर इंडियन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी है. मुझे लगता है कि वहाँ पर जो आपको लोगों का डेब्यू और सब दिखता है वो उसका पहला काम नहीं होता है. वो तो पहली चीज़ है जो आप देख रहे हो. राइट, उसके पीछे जो कई सारी गलतियाँ की गई है, जो कई बार उनको सेल्फ बुली उनको करना पड़ा है, वो कभी दिख नहीं रहा होता है. और जब वो नहीं करता है इंसान और वो अपॉर्चुनिटी सीधी हाथ में लैंड करती है तो वो ऑन स्क्रीन दिखाई देता है कि ये वो एक sustain भी नहीं करेगा. करेक्ट. सस्टेन क्या, मैं बोल रहा हूँ इतना बुरा रिटेलिएशन आएगा दैट यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द क्लास. You're saying as an artist, whichever field you are in, think of yourself as an artist brand. Treat yourself and your art as a product. Absolutely. और वो रिफाइनमेंट की ओर बढ़े हर रोज. बिफोर यू मेक इट टू द बिग स्क्रीन, आई मीन बिग स्क्रीन एज इन नॉट जस्ट an XYZ screen, but making your product public, making yourself public. I still remember जब मुझे अपना पहला vocabulary का सेशन लेना था. So vocabulary is one of the most dreaded vertical sections of English as a subject or verbal ability as a section in entrance examinations. और बच्चों को जब बोलते हैं ना कि 3,500 वर्ड्स लर्न करने हैं तो बच्चे एकदम खौफ में आ जाते हैं, है ना, कि सर 3,500 वर्ड मुझे 35 भी नहीं आते हैं. क्योंकि वो ऐसे वर्ड्स नहीं है ना कि जहाँ तुम बोलो कि वंडरफुल, ब्यूटीफुल, मार्वलस, ऐसे 3,500 करने हो. राइट. ये अब जैसे कलरफुल को वो क्या आपकी दुनिया में कहते हैं पॉलीक्रोमैटिक. ओके. क्यों, क्या करना है. एंड मगर आप सोचिए ऐसे Sure. फालतू होशियारी मारने के लिए यूज किए गए 3500 वर्ड आपको आने चाहिए, तब आप एक अच्छे एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हैं. राइट. सो अब कोई सोचिए ना, आप रेगुलर राह चलते इंसान और आपको कोई आके बोले व्हाट अ पॉलीक्रोमैटिक ड्रेस, आप क्या बोलेंगे? आप ज़्यादा ये बोलेंगे नहीं मैंने वहाँ से नहीं खरीदी है. राइट. सो माई पॉइंट बीइंग कि ऐसे 3,500 वर्ड्स मैं कैसे बच्चों को कराऊँ. बच्चे बोलते हैं न्यूज़पेपर रीड करो. न्यूज़पेपर में आपने कभी देखा है किसी को बैठ के पेपर लाल करते हुए? और न्यूज़पेपर का काम क्या होता है? इंसान को न्यूज़ पहुंचाना. राइट. और क्या कौन सा न्यूज़पेपर ऐसा सोच रहा होगा कि मैं बैठ कर लोगों की रैगिंग लूंगा, लेट्स सी लोगों को पता चलता है क्या. ऐसा नहीं करने वाला है ना. रीडिंग नॉवेल्स, मेरे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं नॉवेल्स. राइट. एक नॉवेल से कितने वर्ड लर्न हो जा रहे हैं उसको? 10, 20, 30, 35 दिए मैंने. 100 नॉवेल्स, वो बेचारा अपनी 10 किताबें नहीं पढ़ पा रहा है. ये सारी प्रॉब्लम्स है. बोले वॉचिंग, लिसनिंग, मूवीज. राइट. उस बेचारे को मूवी क्या, उसको एक्सेंट समझ में नहीं आ रहा, उसको सबटाइटल देखना पड़ रहा है. और सबटाइटल में इतना खो जाता है कि ऊपर क्या चल रहा है उसको वो दिखाई नहीं देता है. हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो क्या करे? वो सब पॉज बटन दबाए, वर्ड लिखे, फिर डिक्शनरी में ढूंढे. नॉनसेंस है. नहीं. बोले इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स, उसमें तो सबटाइटल्स भी नहीं होते. उसने बोला भी कि मान लो कि द मिनिस्टर कमिटेड अ फोपा. मेरे भाई को फोपा वर्ड सुनाई दे भी दिया, फिर उसने ढूंढा, हाँ FOP, APHOP, ये सारे मीनिंग 3 दिन बाद मालूम पड़ा फॉक्स पास. एक पे UXPAS है. उस बेचारे को कमिटी की स्पेलिंग नहीं समझ रही है, तुम फोपा दे रहे हो उसको. ये प्रॉब्लम है. अब मैं एज अ टीचर, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं समझना चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस कौन है. जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं है कि मैं किसको केटर कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप मैं अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करूं तो फर्स्ट स्टेप इज नो योर ऑडियंस. उसे क्या चाहिए, उसे आप क्या देना चाहते हो, उसमें गैप क्या है. राइट. सो मुझे लगता है एज अ टीचर यू नीड टू नो योर ऑडियंस. एज अ प्रोडक्ट, सो द प्रोडक्ट दैट आई हैव गॉट इन द मार्केट, हम लोगों ने बिल्कुल भी ऐसे रेगुलर जगहों पे उसको प्लेस नहीं किया है. I don't want the product to be a run of the mill product. Right. Product perception है मेरा. Right. मेरा ऑडियंस कौन है मैं ये जानता हूँ. वो ऑडियंस उसको कब खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, मैं ये जानता हूँ. So not to mention a name, there was this fabulous, company in the market जिन्होंने एक बहुत ही बड़े मॉल की चेन को खरीदा था. राइट. अब मान लीजिए वो मॉल का एवरेज टिकट साइज था 10,000 रुपये. इस कंपनी ने सोचा कि मैं इसका प्राइस पॉइंट 5,000 कर दूंगा, मैं 50% डिस्काउंट पे दूंगा सब कुछ. इससे क्या होगा,
कि ये लोग तो रिटेन हो ही जाएंगे, जो नीचे जो मान लीजिए बिग बाजार जो लोग जाते हैं वो वाला क्राउड भी ऊपर होके मेरे पास आ जाएगा. सो आई हैव द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. आप यकीन करेंगे इस ब्रांड के साथ क्या हो गया, 1 महीने के अंदर कोलैप्स कर गया. क्यों कोलैप्स कर गया? क्योंकि जो प्रीमियम ले रहा था ना उसको डिस्काउंट मिला, इससे उसको चिढ़ हो गई. अब उसने जाना बंद कर दिया. उसका प्राइड ही ये था कि उसके हाथ में वो बैग है, राइट. उसने जाना बंद कर दिया. और ये लोग ये समझ नहीं पाए कि जो ऑलरेडी बिग बाजार जैसे मार्केट्स में जा रहा है वो ट्रेडिशनल मार्केट्स को छोड़कर खुद को अपग्रेड करके बिग बाजार जा रहा था. उनके लिए वो बिग बाजार का बैग भी एक प्राइड वाली बात थी. जहां वो 500-600 की चीजें खरीद रहा था वो आज एक वाउचर यूज करके महीने भर की 6,000 में शॉपिंग करके आ रहा था. उनके लिए वो अचीवमेंट था. वो तो कभी ऊपर जा ही नहीं सकता था. तो ना उनको ये मिला और ना वो उनके पास बचा. ये प्रॉब्लम है आर्टिस्ट की. आर्टिस्ट सोचता है कि मैं सबको खुश करूंगा. उसको डिसाइड करना है. आप एक्टर्स भी देखते हैं ना जो पैरेलल सिनेमा करते हैं, जो कमर्शियल सिनेमा करते हैं, वो एक समय पे एक चीज सोच रहे होते हैं, राइट, कि इस चीज से मुझे अगर आप सोचिए ना कोई पैरेलल सिनेमा चल रही है और वो पैरेलल सिनेमा में ऑब्जेक्टिव है कि मैं इसको कमर्शियल क्राउड तक पहुंचाना चाहता हूं, तो बहुत बड़ा मतलब वो गैम्बल चल गया तो एक ठीक बात है. बट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस दोनों मार्केट्स अलग है, दोनों ऑडियंसेस अलग है, दोनों की चाहत अलग है. राइट. सो आई बिलीव फर्स्ट स्टेप, know your people, know your audience. It's okay. The attitude. Right. ठीक है यार. While you are giving people the courage to fail, to face rejections, but this, it's okay, चलता है यार, ठीक है यार, हो गया यार. What do you have to say about that? It's a very tricky question. इसमें दो अलग अलग चीज़ें हैं, है ना. It's okay और facing rejection, ये दो अलग चीज़ें हैं. Right. राइट. जब आप फेल हो और खुद को इट्स ओके बोलो, ये गलत है मेरे हिसाब से. राइट. जब तक आप उन गलतियों से सीख नहीं रहे हो, राइट, फेलिंग इज ओके, ये बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए. राइट. हम बिजनेस में जैसे बोलते हैं ना कि बिजनेस क्यों किया जाता है, पैसा कमाने के लिए. मगर हर मोमेंट पे ये नहीं सोचना होता कि इससे पैसा कैसा कमाए, इससे पैसा कैसा कमाए. आप सोचते हो कि सर्विस कैसे अच्छी की जाए, आप सोचते हो ऑपरेशंस कैसे मेंटेन किए जाए. एट द एंड पैसा ही आने वाला है. Right. वैसे ही करियर्स, आर्टिस्ट जिनकी भी आप बात करो, आप ये बोल नहीं सकते हो कि इट्स ओके. राइट. येस, यू नीड टू फेस योर रिजेक्शन, यू नीड टू अंडरस्टैंड. सी, इट्स अ गेम ऑफ विनिंग एट द एंड ऑफ द डे. Right. This reality check, because especially in the fields of art or people who are full-time artists, there is a pseudo notion, because I am artistic, I don't need a routine. Because I am creative, I have to be in a chaotic state. Or how do you balance that? एक ट्रेड जो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है among the many students that I've interacted with, और वो बहुत प्रोफेशनल लेवल पे जाकर भी मुझसे कई बार वापस आकर मिले हैं, जो लोग आर्टिस्टिक होते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी अलग हो जाती है. राइट. उसको किसी वर्ड से मैं डिफाइन नहीं करना चाहूँगा, है ना. बट एक अलग पर्सनालिटी वो ले लेते हैं जहाँ वो वक्त के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते. राइट. उन्हें लगता है कि मेरा आर्ट अपना समय, इट कैन टेक इट्स ओन स्वीट टाइम. अगर वो सही रिजल्ट चाहिए तो मेरा पॉइंट ये है कि पहले सही रिजल्ट डिटरमाइन करो क्या है. हम क्या करते हैं, पहले ओन स्वीट टाइम ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम, आपका जो पहला वाला स्टेटमेंट है, बोलते हैं कि इट्स ओके, है ना, एटलीस्ट मैंने ट्राई किया. ये आपको नहीं बोलना चाहिए. Right. राइट. ये जो आपको सहानुभूति दे रहा है उसने बोलना चाहिए. अगर आप लो फील कर रहे हो तो. राइट. मतलब बचपन से मैं कभी भी कोई स्पोर्ट जब भी खेला हूँ, मुझे याद नहीं है कि मज़े के लिए कब खेला हूँ. राइट. इनफैक्ट मैं अपनी डॉटर्स को भी ये नहीं बोलता हूँ जाओ मज़े करके, आई एम सॉरी, बट जाओ मज़े करके आओ, आई फील लाइक अ लूज़र. राइट. जो अपनी हार को छुपाने की कोशिश करते हैं वो बोलते जाओ मज़े करके आओ. जाओ जीत कर आओ. स्पोर्ट है. Right. हार जाओ तो हताश मत हो जाओ, ये स्पोर्ट्समैनशिप है. Right. बट स्पोर्ट में जीतने के लिए ही खेलना होता है, वरना जो जीत रहा है उसको भी मज़ा नहीं आ रहा होगा. आप मान लीजिए एक टीवी एक्टर है और आपने एक मूवी रिलीज़ की और उसका ट्रेलर मुझे अच्छा लगा और मैं गया थिएटर में और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई.
मैंने आप पर पैसे खर्च किए थे, आपने बोला इट्स ओके। आप कैसे बोल सकते हो मैंने खर्च किए हैं यार वो 300 रुपए, आपके प्रोड्यूसर ने आपके ऊपर खर्च किए थे लाखों रुपए। आप कोई नहीं होते हो बोलने वाले, आपको जीतना है। जिस दिन आप ये सोचेंगे कि मुझे जीतना है, उस दिन आप एक प्लान ऑफ एक्शन बनाओगे कि जीतना कैसे है। What you're saying is खुद के जीतने की जिम्मेदारी सिर्फ खुद के लिए नहीं है. You are accountable not only for yourself but the ecosystem around you. 100%, Whoever you are. 100%। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। एक पिता जब काम पे जाता है तो खुद के लिए नहीं कमाता, परिवार के लिए कमाता है। एक माँ जब घर पे खाना बनाती है तो खुद के लिए नहीं बनाता। एक बच्चा जब पढ़ाई करता है तो खुद के मार्क्स के लिए नहीं करता, अपने पिता की खुशी के लिए भी करता है। ये घर से शुरू हो रहा है। ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। आप इन आइसोलेशन काम नहीं कर सकते। अब इंडिविजुअलिटी जो बढ़ते जा रही है लोगों में, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इज इंडिविजुअलिटी इंक्रीजिंग? मेरे मार्क्स, मेरा करियर, मेरा कपड़ा, मेरा मकान, वर्सेस देन सडनली इफ वी एक्सपेक्ट पीपल टू फील नो यू आर पार्ट ऑफ अ लार्जर इकोसिस्टम, स्पेशली विथ द आर्टिस्ट्स, कि आपका आर्ट, आपका आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ये, बट यू आर क्रिएटिंग आर्ट विच इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय अदर्स इन वॉट एवर फॉर्म. ये हाउ इज दिस डुअलिटी प्लेइंग? हर आर्टिस्ट को ये सोचना चाहिए तो खुद को आर्टिस्ट क्यों बोलता है। पॉइंट बड़ा सिंपल है ना। आपका आर्ट अगर किसी को दिखेगा नहीं तो आप आर्टिस्ट कैसे हो? क्वेश्चन। आर्ट तभी है जब कोई कम्युनिकेशन की तरह है आर्ट। अगर रिसीवर ही नहीं है तो सेंडर का अस्तित्व ही नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हो मेरा आर्ट है ये? तो रख फिर मत बता। इट्स वेरी सिंपल। ये ऑडियंस मेरी नहीं थी, ये बोलने से पहले ये सोचा तुमने कि उस ऑडियंस को फिर दिखाना है कि नहीं दिखाना है। मेरी बेटी जब वो मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब अपने कीबोर्ड पे प्ले करती है ना, वो एक आर्टिस्ट है और मैं एस्पायर करता हूँ यार, हेजल 7 साल की और मेरी हैड अ लिटिल लैम्ब बजा रही है, मैं क्या कर रहा हूँ एट 37। एज एन आर्टिस्ट अगर आप फेल हो रहे हो, आप फेलो आर्टिस्ट कम्युनिटी में भी डिसहार्टनिंग चीजें, डिमोटिवेटिंग चीजें अपने आप फैला रहे हो। सो व्हेन एन आर्टिस्ट फेल, ही फेल फेलो आर्टिस्ट एज वेल। वो अकेला फेल नहीं हो रहा है। कपिल शर्मा शो एंड हैपेंड, राइट? वो अकेला नहीं है ना, देयर इज अ होल कॉन्वॉय जो उसके साथ जी रहा है, जीत रहा है, मजे कर रहा है। जो आज उसके साथ हैं वो तो सक्सेसफुल हैं, जो पहले थे कैरेक्टर्स वो भी सक्सेसफुल हुए ना। तो अकेला इंसान सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इफ इट कोलैप्सेस, वो अकेला कोलैप्स नहीं करेगा। वो सब जिन्होंने उसके ऊपर भरोसा किया सब कोलैप्स कर जाएंगे। तो इंडिविजुअलिटी आर्टिस्ट के लिए तो मतलब एक है ना ऑपोजिट, क्या एंटीथेटिकल टर्म हो गया। Precisely to do that, to help people realize the sheer responsibility of being an artist, the fact that you are a part of a bigger ecosystem and there can be steps taken to ensure that the collective artistic energy elevates in the world, is why we created this platform called Voice of Artist. So welcome to Voice of Artist. Thank you so much. What is your Voice of Artist? I believe that my voice or my art is for the last benchers, right? It's not for the brilliant mind only, right? Or the most paying people only. I believe एक बहुत बड़ा मार्केट है, एक बहुत बड़ा ऑडियंस है, एक बहुत बड़ा रिसीवर मास बैठा है उधर जिसको कोई देखना नहीं चाह रहा। And I believe if I have to have that voice, I'll reach out to the last person on the last bench, even as the audience. मैं लास्ट बच्चे तक क्यों जाना चाहता हूँ? क्योंकि जो अच्छा बच्चा है ना उसके पास सब जाना चाहते हैं। जो बेचारा निगलेक्ट है ना उसको कोई देखना नहीं चाहता। वो तो पीछे मोबाइल में बैठ के गेम खेल रहा है बेचारा, है ना? वो अपनी गुमनामी में खोया हुआ है। उससे 2 मिनट बात कर लोगे ना, शायद वो इससे बेहतर बन जाए, शायद, मगर उसको मौका तो दिया जाए, तभी हम एज आर्टिस्ट फ्लरिश करेंगे ना। आर्ट इज डाइंग, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट होना ही नहीं चाहिए। आर्टिस्ट्स आर डाइंग, ये स्टेटमेंट होना चाहिए। You are the right person for me to ask this, because आप बच्चों को ट्रेन करते हैं या काउंसिल करते हैं to unlock their maximum potential in terms of quants, verbal ability, logical reasoning, and you have had an amazing track record of 99.1 percentile. 99.99. 9 percentile. Right. With that,
the creativity, the imagination. So this balance of left and right brained, आज के ज़माने में वो कितना important है, कितना हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, क्या आगे है, क्या नीचे है, the entire IQ and EQ quotient in this. When I go back to school, मेरे स्कूल, हमारे यहाँ ना जब वो बोरवेल्स की ड्रिल दिखाई जाती थी तो सिर्फ एक पोस्टर पे 3 कॉन्सेंट्रिक पाइप दिखाए जाते थे जो अंदर जा रहे हैं, और बाकी हम खुद ही इमेजिन करते थे, हमारे कान में आवाज़ भी आते थे जब सर बताते थे. नाउ दिस with this changing world and the world going all animated and all online learning in everything, imagination को कुचल दिया गया है. Let's go back to गुरुकुल. दुनिया में बोर्डिंग स्कूल का कंसेप्ट हमने दिया हुआ है गुरुकुल सिस्टम से. Interesting. वरना बोर्डिंग स्कूल कंसेप्ट था कहाँ, राइट? और यही बोर्डिंग स्कूल है ना गुरुकुल सिस्टम, जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को एक ऋषि के पास छोड़कर आ रहे हैं और वहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं. यही तो ज़रूरत है, जहाँ हम बच्चों को गुरुकुल में छोड़कर आए, बच्चे बाहर घूमें, चीज़ें उठाएं, चीज़ें बनाएं, चीज़ें तोड़ें, गलतियाँ करें, पेड़ से गिरे, पैर तोड़वाएं, और फिर वो गुरु समझाए कि ये गलत था. राइट? बच्चों को करने तो दो. आप मुझे बताइए ना, आज जो कैंडिडेट हम बोल रहे हैं कि दिस क्रिप्टो जनरेशन ये नीचे जा रही है, डिप हो रही है, इसके जिम्मेदार कौन है? हम ही तो हैं. हमने कहा उनको मौका दिया कि वो बाहर जाके बात करें. इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो. दे आर मेकिंग बेटर मनी देन अस. In this overwhelmingly available information वाला world, जहाँ पे हर कुछ available है at the literally tip of your fingertips, how do you cultivate imagination? ओवरवेलमिंगली जो अवेलेबल है उसमें से ज़्यादातर चीज़ें गलत अवेलेबल है. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी पे जो लोग पढ़ रहे हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें गलत है. तो ओवरवेलमिंगली इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है. इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं, इन्फॉर्मेशन स्किम करना पड़ेगा. स्किम करके 10 वेबसाइट से वेरीफाई करना पड़ेगा. आप एक बार डालिए तो इस कॉलेज का एवरेज पैकेज कितना है. आपके पास 22 अलग अलग पैकेजेस होंगे, टॉप के, एवरेज के और मीडियन के. राइट? इंटरनेट पे द वेरियस chacha.coms, mama.coms आर अवेलेबल टू फीड गार्बेज इन योर हेड, सेल ड्रीम्स एंड मेक मनी आउट ऑफ इट. सो देयर शुड बी ऑनलाइन प्रोग्राम्स, ऑनलाइन कोर्सेज जो ये बताए कि इंफॉर्मेशन को स्किम कैसे किया जाता है. So coming back to the original thought, how to nurture imagination or imagination power with this overwhelming level of noise outside? कोई भी एक अच्छा आर्टिस्ट आप सोचिए ना, अगर वो कोई कैरेक्टर पकड़ पाता है तो वो अपने इमेजिनेशन से नहीं पकड़ पाता है. उसने जब तक वो कैरेक्टर को कहीं रियलिटी में देखा ना हो, हाउ कैन इट बी कि आपने वो सोचा और वो कर दिया और वो सेम हो गया. ये 1 in a billion केस हो गया. There's a मेहनत behind it. एब्सोल्युटली. मेहनत में भी पहला स्टेप क्या है? एक्सपोजर. इमेजिनेशन से पहले उस चीज़ का एक्सपोजर. तो मैं चाहूँगा कि हर आर्टिस्ट गैलरीज जाएं, थिएटर्स जाएं. अरे एक्टर बनने से पहले किसी का प्ले तो देखो. राइट? आर्टिस्ट बनने से पहले देखो तो कि किसको आर्ट बोलते हैं. बस एक ऐसा फूल बना लेना और तुम्हें पसंद आ रहा है और लोग बोले बढ़िया किया है, ये आर्ट नहीं है ना. देयर इज सम साइंस टू इट. कोई आकर बोल रहा है व्हाट ब्राइट यूज ऑफ कलर्स, मतलब उसको कुछ समझ में आया है इसके अंदर. राइट? ये फीडबैक जरूरी है. ये पता चलना जरूरी है कि अच्छा ब्राइट यूज ऑफ कलर्स और डल यूज ऑफ कलर्स भी होता है. उसने बोला पेस्टल तो सही यूज किया है, मुझे पता ही नहीं था वो पेस्टल है. पॉइंट इज एक्सपोजर जब होगा तो इमेजिनेशन आएगी. इमेजिनेशन में अड़चने आएगी तो आप फर्दर एक्सपोजर सीख करोगे. इससे रिफाइन होता जाएगा, होराइजन ब्रॉडर होता जाएगा. इज व्हाट आई फील. The way times have changed, especially in India, 90s saw a phase of globalization and then the IT bubble happened. The need of the hour that time was more engineers, more doctors, more lawyers. Without going into who is to be blamed for not nurturing creativity and art or artists at that time, today we have become aware and our education system is also allowing the children and the young people to bring their own self to life. How do you see the artistic expression and pursuit or the desire for it changing? Has it increased, decreased? What role has this larger ecosystem played in it?
Also, I mean, barring the the early 90s and the trouble that we were in and the fabulous policies that came in, and India moved towards a global economy than a closed or being rather than being a closed economy. वो वक्त तो एक अलग हो गया, बट देन जो हम लेटेस्ट ट्रेंड देख रहे हैं जहाँ पे वी आर ओपनिंग अप to the world and having the various brands of the world, the various celebrities, आज लोग के ड्रामा के बारे में बात कर रहे हैं और सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं which were unheard of during our times, our childhood days, right? In fact, my daughter knows a lot of things like these. मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत मेजर रोल प्ले किया है with the creative freedom that these children get, right? And the policies that have come in, जैसे मैंने आपको शायद बताया भी हो कि अभी जो NAC कमेटी है या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने कई सारी ऐसी चीज़ें लाई है जहाँ पर आप देखेंगे कि इंटर्नशिप्स कंपलसरी हो गई है, गेस्ट लेक्चर्स कंपलसरी हो गए हैं. सो एक्सटर्नल टैलेंट कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर कंपलसरी हो गया है. देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू हैव a lecture in a week or in 3 days at one of these schools or colleges on invitation. Now I almost get 3 lectures a day. I am invited for almost 3 lectures a day because इतने सारे institutions हो गए हैं, plus उन institutions के ऊपर ये जो बहुत beautifully जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं गवर्नमेंट के, जिन्होंने ये कंस्ट्रेंट्स ला लिए हैं कि आप एक्सटर्नल टैलेंट को भी वेटेज दो, रोट लर्निंग पे फोकस मत करो, राइट? जिसकी वजह से हाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. एंड आई एम सर्टेन विद दिस एक्सपोजर जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो ब्राइटर होगी. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ज़्यादा आर्टिस्टिक होगी, एटलीस्ट दे हैव अ ब्रॉडर होराइजन, वो मायोपिक नहीं होंगे. एंड आई एम श्योर द नेक्स्ट जनरेशन वोंट बी myopic at all in terms of being receptive of knowledge. Interesting. So, this linking to what we were discussing earlier about the freedom to visualize while being a digital native. Correct. What is the role of technology you are seeing in, would you call it intelligence quotient? नहीं है लेना देना, मतलब अलग. देखिए, थियरीज तो थियरीज होती हैं, है ना? वो फैक्ट्स नहीं हो सकते, राइट? तभी उनको थियरी कहते हैं. तो बॉटम लाइन ये है कि ऐसा किसी ने एस्टैब्लिश नहीं किया कि टेक्नोलॉजी किसी का इंटेलिजेंट क्वोशिएंट गिरा सकती है. द बिगेस्ट ऑफ द आर्टिस्ट जब हम बात करें, हम खुद AR रहमान सर की जब हम बात करते हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके म्यूज़िक को जिस लेवल पे ले गए हैं, इन द एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी आवर जनरेशन वुड हैव मिस्ड आउट ऑन दैट मैजिक. सो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स की ओर ले जाती है और ले जा रही है, इसमें कोई दो राहें नहीं है. Coming back to again what we have been doing with Hazel, we have this keyboard जिसके ऊपर so it's a guided keyboard, right? So she cannot miss out on a few things like how to start, where she plays her fingers, और वो 4-5 बार गाइड करता है, उसके बाद एरर दिखा देता है, राइट? सो टेक्नोलॉजी काफ़ी असिस्ट कर रही है आगे बढ़ने में, राइट? इनफैक्ट मैं तो ऐसे कीबोर्ड्स भी देखे हैं जो आपकी कीज पे रेड 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 ब्लिंक करता जाएगा, एंड ऑल यू नीड टू डू इज प्रेस, और आप प्रैक्टिस करते रहो और आपको आदत पड़ जाती है बजाने की. ऑफ कोर्स आई बिलीव कि ये गलत तरीका है सीखने का, जहाँ पर आपने उन की का यूजेज नहीं समझा, उसका मतलब नहीं समझा और एक पर्टिकुलर लेसन सीख लिया. यहाँ पे टेक्नोलॉजी कन्वीनियंस ले आई, जिसकी वजह से आर्ट पीछे रह गया. आर्ट के लिए कहा जाता है द मोर कॉम्प्लिकेटेड द स्ट्रिंग्स आर, द मोर इट इज अप्रिशिएटेड बाय द ऑडियंस. आर्ट जितना या तो ऐसे पानी की तरह शांत शीतल हो, है ना, लेक की तरह, या तो एक सैलाब हो उसके अंदर. ये दो एक्सट्रीम्स होते हैं, बीच में कुछ नहीं होता है. जो बीच में होता है फिर वो कभी इस तरफ जाके गिरता है, कभी उस तरफ, तो वो डेस्टिनी के ऊपर होता है. बट देन आर्ट जो है अगर एक पर्पस के साथ है तो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है. तो टेक्नोलॉजी आपके आर्ट को एक पर्पस देने में हेल्प कर सकता है, इज व्हाट आई बिलीव. I will take maybe 50 steps back now and ask you, what is the purpose of art, or why does art exist in this world that we are talking about, which is advancing in technology, business, management, economy? आप सोचिए कौन सी इंडस्ट्री है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती.
वो है आर्ट और एंटरटेनमेंट। इंसान जीता है खाने के लिए और एंटरटेन होने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग एल्स इन लाइफ। एक बार आप सोच कर देखिए, टेक अ पॉज इन योर लाइफ। लाइफ में दो ही चीजें हैं, एंटरटेनमेंट इन एनी फॉर्म। मेरी बेटी मुस्कुराई, मुझे खुशी हुई, वो खुशी एंटरटेनमेंट है एक तरीके का। मैंने टीवी देखा, मैं खुश हुआ, मैं क्रिकेट खेला, मैं खुश हुआ, मैंने खाना बना के अपनी वाइफ को खिलाया, मैं खुश हुआ। दैट इज द आउटकम ऑफ एंटरटेनमेंट। आर्ट का कोई पर्पस ही नहीं है, आर्ट ही तो ये लाइफ है। लाइफ इसके बियॉन्ड है ही क्या? आप जो भी कमा रहे हो, जो भी कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आर यू गोना डू? यू गोना एंटरटेन योरसेल्फ। और क्या है? कहते हैं ना, वो योगा करते हैं, वो प्राणायाम करते हैं, तो वो भी एक कला है। हर चीज कला है। खाना बनाना, खाना, रिश्ते निभाना, वाइफ के साथ रहना, बच्चों को बड़ा करना, पैसे कमाना, हर चीज कला है। कहाँ आर्ट नहीं है? मैं एक टीचर आपके सामने बैठा हूँ एज एन आर्टिस्ट, आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, एक आर्टिस्ट। हम सब यहाँ आर्टिस्ट हैं। एवरी सिंगल पर्सन दैट एग्जिस्ट, एवरी सिंगल बीइंग दैट एग्जिस्ट, हमारे बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी तो आर्टिस्ट ही है। अपना खेल ही दिखा रहे हैं यार। आर्ट आया कहीं से नहीं, आर्ट ही है सब कुछ। ये आर्ट है ना, स्वयं भगवान शिव आर्ट के रिप्रेजेंटेटिव, वहां से आया आर्ट। आर्ट एग्जिस्ट एवरीवेयर। I'm going back to my MBA preparation days and our first interaction maybe 10-12 years ago. During the seemingly heavy concepts at that time in the class, you would also encourage us to read books like Chariots of the Gods. And I remember while I would feel overwhelmed about how to crack that next quant problem, the hope and courage that you gave me while I wrote the book review of Chariots of the Gods. It might be a very small thing, but somewhere it became a thread which gave me hope, courage, and freedom to express myself. And 10 years later, today, we are here. What is the role of hope, a seemingly intangible thing, in this tangibility of the world around us? Everyone would think that, hope is a very big thing. Of course, hope is important. But the point is, where's the hope coming from? That's more important than the hope itself. Who is giving you that hope? Your hope was from a subject that you were good at, that, eased out the difficult one. Right? So, where is that hope coming from? मेरा नेबर मुझे उम्मीद दे, मेरे काम की नहीं है। मेरे पापा मुझे उम्मीद दे, मेरे काम की है। दूसरी फ्रेटर्निटी का, मैं एक पेंटर हूँ, एक फुटबॉल प्लेयर मुझे होप दे, मेरे काम का नहीं है। एक बडिंग पेंटर मुझे बोले कि यार सही कर रहा है, सही हो जाएगा, वो मेरे काम का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रेटर्निटी ये सीखे कि हमें एक दूसरे को होप देनी है। ये पॉडकास्ट जो लोग सुन रहे होंगे, आप उनसे पूछेंगे कि आपको कितने करियर्स याद आ रहे हैं, वो 2, 4, 5, 7, 10 करियर हाथ पे गिन पाएंगे, 20 करियर गिन पाएंगे। क्या वो बोल पाएंगे कि 2780 से भी ज़्यादा करियर एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्होंने उनके बारे में कभी सोचा ही नहीं ना। होप किससे लेनी है ये भी समझिए। हमने देखा है ऐसी कई IAS एकेडमी मुखर्जी नगर में, जहाँ पर जो IAS की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं वो खुद IAS ऑफिसर नहीं होते हैं, मगर उन्होंने देश के सबसे बेहतरीन सिविल सर्वेंट्स दिए हैं। वो सही इंसान थे होप देने के लिए। वो खुद सक्सेसफुल भले ही नहीं थे उस स्तर पे, मगर वो सही इंसान थे होप देने वाले। It's not about the hope, it's about who is giving it. That's more important, that's more vital. So you as an individual, do you find your fraternity, or does the fraternity find you when you're ready? What happens? What is the linear process? Oh no, I mean, इसका कोई black and white आंसर नहीं है, ग्रे है। कई बार आप सही जगह पे होते हो, कई बार आपको सही लोग ढूंढ लेते हैं। मेरा कहना बस यही है कि आप सही एटीट्यूड रखिए, वरना लोग आपको ढूंढ भी नहीं पाएंगे। है ना? आपने सही तरीके से सही जगह पर चीज़ें प्रेजेंट नहीं की है ना। लाइफ क्या है? अपॉर्चुनिटी, राइट? आपको बहुत सही अपॉर्चुनिस्ट होने की ज़रूरत है। एक अच्छा आर्टिस्ट, आपने कई बड़े बड़े एक्टर्स को कहते हुए सुना होगा कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत ये करता हूँ, मैं बहुत वो करता हूँ। ऐसे कई अनसक्सेसफुल स्टोरीज है जिन्होंने उनसे शायद ज़्यादा मेहनत की हुई हो, जिन्होंने ज़्यादा रातों को अपनी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स लाए हों। वो सक्सेसफुल क्यों नहीं है? बिकॉज दे वर नॉट देयर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, And did not realize also. yes,
कई बार वो सही जगह पे भी थे मगर उनका बर्ताव वैसा नहीं था जहां वो सीकर हैं। आप एक चीज़ समझिए, मैंने एजुकेशन में रहते हुए एक चीज़ समझ ली है और मैं ये बहुत क्लियरली मानता हूँ, एप्टीट्यूड दैट मीन्स आर्ट कैन बी टॉट बट एटीट्यूड यू आर बॉर्न विथ इट। उसको या तो मैग्नीफाई किया जा सकता है तो सप्रेस किया जा सकता है, उसे बदला नहीं जा सकता। आग का नेचर है जलाना, आप उसको दिए के लिए यूज़ करो या जंगल जलाने के लिए, आग जलाती ही है। तो आपको सही एटीट्यूड इंकलकेट करके अपने आप में एटलीस्ट प्रेजेंट तो सही करना है। आपको दिखाना है मैं दिए की आग हूं या जंगल की आग हूं, आपको डिसाइड करना है सामने वाला क्या रिसीव करना चाहता है। तो इंकलकेट द राइट एटीट्यूड एंड आई बिलीव द राइट पीपल हु कैन गिव यू होप विल फाइंड यू। आप बस रेडी रहो, आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहो, आप हर दरवाजे पे नॉक करते रहो, सही दरवाजा एक दिन खुलेगा। और नहीं खुला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तक सर आपने कितने बच्चों के साथ काम किया है? व्हाट इज द फिगर रेंज? कितने बच्चों को ट्रेन किया है, मेंटर किया है? 20-22 हज़ार कम से कम। 20-25,000 किड्स और यंग माइंड्स। भारत के युवा का भविष्य क्या है आपके एक्सपीरियंस में? द वर्ल्ड इज लुकिंग टू अस, द वर्ल्ड इज लुकिंग टू अस, नॉट लुकिंग एट अस। इंग्लिश का फ्रेज है, लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा, राइट? दे एक्सपेक्ट अस टू बी बिग। वो चाहते हैं कि हम बड़े बने और हम सबसे बड़े बने। वी आर द कंट्री मे बी नाउ विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। और यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक वक्त था जब तेल दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ करती थी, आज मैन पावर दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेटा दुनिया की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वी आर कंट्री दैट इज डेटा रिच एंड पीपल रिच। वी आर अमंग द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वी आर दी फ्यूचर, वी हैव टू बी द फ्यूचर। हमें यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। ओनली अ डिजास्टर कैन ब्रिंग अस डाउन। हम जैसे हैं वैसे भी चलते रहे तो हम अच्छा ही करेंगे। So we are headed for greatness with, people like you, and there are a lot of people who are coming out and trying to help the communities grow. That is the most beautiful part. अकेले में सक्षमता नहीं है, वो यूनिटी में ही ताकत है, सबसे important चीज। So when people come together, we need as a country need to grow beyond gender, caste, creed, religion, professions, and come together, and I'm sure we will be unmatched as a talent power. Please look into the camera and give a message to the young minds who want to unlock the artist within themselves, who may be lost or shy or fearful or distracted. What would be the message be? Try it out. Don't give up. Unless you try, you won't know if you're good enough or not. Most important thing is to try out. Thank you. Any last thoughts that come to you on the platform of Voice of Artist, where we want to give the courage and comfort to people that you can unlock the artist within yourself? Don't give yourself the comfort. Give yourself the hunger of unlocking the artist is what I believe, And I would like to congratulate the people who are already watching this, because this is step one of unlocking that hunger. If they have survived till now, that means they have the willingness to unlock the hunger. So kudos, first steps taken. Let's move to the next step. Thank you for coming to Voice of Artist. It was a pleasure The having pleasure you is here, all sir. mine. Thank you so much. Thank you.